Okay, we've started the recording, so let's get back. Are there any more questions about the anointing? Some more people came and asked during the break some very good questions. और आपके पास कोई प्रश्न है? ब्रेक के समय कुछ लोग ने अभिषेक के बारे में प्रश्न किया था, बातचीत किया था. अगर आपके पास कोई प्रश्न तो बताइए. Yes. So many organizations are working in India. Correct. They're not doing just planting. They're not doing ministry like this just planting, but they are doing ministry project type. So in that time, Yes. because many people are working in that organization, Right. and the organization is leading to doing what they need. But while coming for the result, Yes. report. So in that time, you told us the exact number we have to be given in report. Yes. In some time, the organization want to give this number. But what we can see in the field, we are seeing only this people is there. Yes. But they are asking about the report, what organization is going to make report like this. But sometimes people are not happy to write one's report. Yes. Yeah, I get your, I get the context, brother. So what is your question? Please, everyone, if somebody is asking a question, please listen to what they are saying. We don't appreciate, people laughing and all that. Because if you ask a question, you want other people to listen, right? Okay, ध्यान सुनिए. जो प्रश्न जो बातचीत किया जा रहा है, आप लोग कोई मजाक. Just a moment, brother. Just a moment. Let him finish. Yeah. एक बात को ध्यान रखें. कोई अगर प्रश्न कर रहा है या कोई विचार विमर्श को अपने सम्मुख रख रहा है, तो आप ध्यान दें. आप हंसे नहीं, क्योंकि आपके पास भी प्रश्न हो सकते हैं. इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अच्छा है बातों को सीखने के लिए. Okay. So, brother, if you can just tell me the question. I understood the context. Yes, madam. Because you told about the anointing people and gifted people. So they are doing also ministry among in India, in non-Christian believers. So they are not doing church planting, but they are doing project-wise ministry to Yes. support church. Yeah. To support church. So, brother, sorry to interrupt you. So you said that you want to give, or people give honest numbers, but the organization ask for some other numbers. What they deserve. So what is the challenge, or what is the Yeah. question? That what is the deserve, we can write numbers there. But what we are seeing in field, that is not correct. So we can write correct report. But they are told us, you write this number because organization deserve this number to send our report in somewhere. So in that time, where is? Yeah. So see, brother, we are going to talk about that also. As I Yeah. told, most of these things happen for funding, Yes. right? But the भाई point. का Yeah, भाई go का ahead. प्रश्न ये था कि कई संस्थाएं हैं जो सेवाएं करते हैं. फलों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे. कई संस्थाएं हैं कि जिस प्रकार रिपोर्ट के बारे में कि हमें एक सही नंबर देने से 50 है, लेकिन संस्थाएं नहीं चाहती. वो कहते हैं कि हमें ये नंबर नहीं, हमारे आंकड़ों के अनुसार होना चाहिए. हमारा आंकड़ा ये है, इसके अनुसार देना है. तो उनका यह है कि क्या ये हमें करना जरूरी है, ये सही है, गलत है. See, Jesus has taught us honesty, integrity. और यीशु मसीह हमें इस बात को बताता है, सिखाता है कि हमें ईमानदार और निष्ठता होना जरूरी है. Okay, it's a very hard choice. But there is no other stand. That's the only stand of the Bible. ये बड़ा कठिन चुनाव है हमारे लिए. और ये हमें क्या देखना है कि परमेश्वर का वचन का आधार क्या है, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है. Yeah. So it's very sad that huge organizations are doing things like this, but it's not correct. ये In बड़ा that time, if we stand in right place, because the word of God say to tell right thing. If we tell right thing, so they are angry along with calling. Yeah. So see, I understand that, but by trusting God, we have to do the right thing. So we are trusting God. Yeah, that's So all. What about the organization? They are not trusting God. They not believe us, but they want to number only. See, remember we said earlier, don't partake in other people's sins. They are making a mistake, doesn't mean we should also make a mistake. If we tell everything is true,
So they told us, if you want to work here, you can do. Yeah, so that's what Or I'm after saying, that no, you can brother. leave- It's leave a it. tough choice, but Yes. we have to trust God and do what is right. एक It's the बात only याद option. रखना, हमें परमेश्वर के वचन का, यीशु मसीह ने क्या कहा उसके आधार पर हमें बने रहना है। संस्थाएं बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आपका सोच क्या है, आपका विचार क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, उसको समझना। आप गलत, उन पर दोष ना लगाए। अगर आप गलत करना चाहते हैं उनके साथ सहमत करें, लेकिन वचन हमें क्या बताता है? हमें ईमानदार बनना, हमें ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऊपर है। कठिन चुनाव तो है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड है, इस प्रकार लेना है। But Okay. we not blame them. They are doing this thing because they are also anointing person. They are choosing people. They are also called by God to come and do ministry. So in Correct. that way, So, what see- we can do it? Yeah, see, brother, again, we can pray about it. If we are the people who have to expose the wrong thing, then maybe we should do that. Or if you don't want to get into that, just let it be and you choose something else. That's all. Yes. हमें क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है। वो गलत होगा, लेकिन हमें चुनाव लेना है, हमें किस प्रकार खड़ा होना उनके साथ, हमारी बुलाहट क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। Okay. All right. So, any other questions? Anointing. और कोई और भी अभिषेक के ऊपर कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है, बात कर सकते हैं। Yes. Okay. So, if there is somebody who is filled with the anointing and they make a mistake, right? Yeah. Then, so see, anointing is perfect. अभिषेक तो वहां पर सिद्ध है, Vessel is not perfect. Vessel, yeah. लेकिन जो पात्र बर्तन वो सिद्ध नहीं है या साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है। Okay. So mistakes happen. गलतियां होती है, Only thing, we should not make mistake intentionally. और हमें क्या करना है? जानबूझकर हमें गलती नहीं करना है। So that's the reason we are all learning all this right now, so that we don't make mistakes. इसलिए हम सीख रहे हैं कि हम अपने जीवन में गलतियां ना करें। Okay. Yes. Yeah. Let's go ahead then. We were talking about kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाली बातें कर रहे हैं, And we must learn to relate with other ministers of God. हम अन्य सेवकों के साथ संबंध बनाने के बारे में हम देख रहे हैं। Even if we do not agree with their doctrine, I'm sure if we are believers, we can find some common ground. और हम विश्वासी होने के नाते हमारा एक साधारण एक स्थान है, लेकिन कई बार हो सकता है हम दूसरों के सिद्धांत को हम पसंद नहीं करते होंगे। We can learn from other ministers of God. हम दूसरों की सेवा के द्वारा हम सीख पाते हैं या सीखने पाते हैं। See, when we associate with people like whom we want to be, अगर हम ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, so if I want to become something, I can associate with people who are like that. अगर मुझे कुछ बनना है तो हम प्रयास क्या करते हैं? उन लोगों के समान बनने का हम सोचते हैं। The Bible says iron sharpens iron. और जिस प्रकार बाइबल कहती है कि लोहा लोहे को चमकाता है, So with the right company, even I can grow up and I can improve in God. अगर सही हमारे रिश्ता लोगों के साथ है तो मैं बढ़ सकता हूं उसके साथ उन बातों में। If I have a good friendship with other good men and women of God, we are positively impacting each other. हम देखते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना या परमेश्वर के दास और दासी अच्छी सोच के साथ बनना चाहते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। And I just want to tell all of us young people, bad company will corrupt good character. और देखते हैं, एक बात याद रखना जवानों, कि एक अच्छी संगति बुरी संगति के साथ बिगाड़ देती है। Okay, so we must be very careful who our friends are. एक बात में सावधानी बरतना है कि हमारे अच्छे मित्र कौन है, उनको समझना। Okay, so if we are hanging out with the wrong kind of people, अगर हम गलत लोगों के साथ हमारा संबंध है तो then their character will become our character in no time. हो सकता है उनका चरित्र हमारे अंदर आ जाए, स्वभाव आ जाए। Okay, so coming back to what we were discussing, when we are interacting with good ministers of God, we can learn so much from them. जब हम अन्य सेवकों के साथ संबंध बनाते हैं, हम बहुत सी उनके जीवन से अच्छी बातों को सीखने पाते हैं। A good leader must be a good follower.
और एक अच्छा जो सेवक वो अच्छा उसके पीछे चलने वाला बन सकता है। Sometimes what happens when we are leaders, we know how to put rules on other people, but we don't follow rules. We put rules on other people, कई but बार we क्या don't होता है, follow. हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, नियम को थोप देते हैं, लेकिन कई बार उन नियमों का हम पालन नहीं कर पाते। When we say that I am above the rule, और हम क्या कहते हैं कि मैं नियम के ऊपर हूँ, okay, so मैं नियम के ऊपर कार्य करता हूँ। that rule is not for me. वो नियम, वो काम मेरे लिए नहीं है। So this might happen when we are leading people. जब ऐसा तब होता है जब हम लोगों की अगुवाई करते हैं। Okay, so we must be very careful to first of all follow, be a good follower, then be a good leader. सबसे खास बात यह है कि हम एक अच्छे अनुयायी बनने के लिए अपने आप को तैयार करें, तभी हम एक अच्छे निर्देशों को लोगों को हम पालन करने के लिए बोल सकते हैं। See, there's one small example. एक छोटा सा उदाहरण, Many times people will call us to their church and they'll say, okay, sister, I'll give you 5 minutes, you talk. और चाहे दूसरी जो कलीसिया है और उन लोग को कहते हैं, बहन आप एक काम करें, 5 मिनट हमारे लिए हमसे बातें करें। What is the instruction? इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? 5 minutes, right? 5 मिनट का। Now, if I start talking non-stop, I'm going on and on and on. अगर मैं 5 मिनट मुझे दिया गया है, बिना रुके सुपरफास्ट होते हुए टाइम को पार कर दूं तो कैसा लगेगा? I did not follow their instruction. इसका मतलब ये है, मैं जो निर्देश मुझे दिए गए हैं उसका मैं पालन नहीं कर रहा। They said 5 minutes. उन्होंने 5 मिनट कहा, I should watch the time. मुझे समय देखना है, I have to stop 5 minutes. 5 मिनट में बंद करना है। This is a problem that many of us have. और ये समस्या बहुत लोग के जीवन में पाई जाती है। We don't keep time. हम अपने समय का पालन नहीं करते। Somebody gives us time, okay, I'm giving you 10 minutes, 20 minutes, we'll go more than that. कई बार क्या होता है कि लोग हमें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का समय देते हैं, हम उस समय को पार कर जाते हैं। Please follow instructions. निर्देशों का पालन करें, That's when we can all work together in a proper way. और तभी हम मिलकर एक साथ एक अच्छे रीति से हम बढ़ सकते हैं। See, otherwise, if they give me 5 minutes, I'm going more than that, I have disrupted their program. क्या होता है कि अगर 5 मिनट आपको दिया है, उससे अधिक समय ले, क्या होगा? कार्यक्रम वहां पर संचालन किया जा रहा है, उसमें बहुत बाधाएं या रुकावटें हो सकती है। Okay, so I hope you all understood what I'm trying to say. मैं समझती हूँ कि आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। No matter how great we become, follow instructions. और हम कितना भी बड़े हो, हमें क्या करना है, कितने बड़े बड़े पद पे भी हो, हमें एक बात याद रखना, निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। Be comfortable even if people don't recognize you. एक बात याद रखना, कोई हमें मान्यता ना दे, कोई हमें सम्मान ना करे, हमें खुश रहना है। Okay, it doesn't matter. It doesn't matter, you know, if people know our names or not. आप इस बात की परवाह ना करें कि आपको सम्मान कर रहे हैं या आपका नाम नहीं ले रहे हैं। When other people are ministering, respect their gifts, their anointing. अगर कोई एक सेवक का जिनके उनके वो जो वरदानों से परिपूर्ण है, वरदान से भरे, दान वरदान से भरे, उनका सम्मान करते हैं, मान्यता उन्हें देते हैं। Okay, so you know, I still remember when I started preaching. मुझे याद है जब मैं अपने जीवन काल में जब वचन की सेवकाई जब मैंने शुरू की। So there are people in our pastoral team. और पास्टर के उस समूह दल में जो दल में मैं देखने पाती हूँ। No, they would send me a message or come say, "Oh, Nancy, you spoke so well. We were so blessed." हाँ, उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि हम आपके संदेश के द्वारा आशीषित हुए, बहुत अच्छा था। इन बातों को मेरी प्रशंसा की। Till today they do that. आज भी वो मेरे लिए करते हैं। Okay, and from, you know, you could say like I was a kid when I started preaching, right? जब Like in मैं front of people. अपने वचन की प्रवचन जब शुरू की, जब मैं एक बच्ची थी। Not by age, but I felt like one. हाँ, Okay. लेकिन मैं Yeah. उतनी बच्ची नहीं थी, लेकिन मेरे एक उम्र था, एक जवानी अवस्था में। Okay, so the point is, I was amazed that people are respecting the anointing on a young person. देखते हैं कि एक जवान के ऊपर परमेश्वर का जो अभिषेक है, और उस अभिषेक को परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए लोगों के बीच में उसको मैं समझ पाई। People are appreciating the gifts in another young person. और एक जवान के अंदर दूसरे लोग उस बात की मान्यता देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार वरदानों से अभिषेक उसे किया है। See, they themselves are very anointed.
और वो हो सकता है अपने आप में बड़े अभिषिक्त होंगे, But you see the attitude. लेकिन उनका रवैया देखे किस प्रकार है। That's something that I have learned from them. और मैंने उनके द्वारा अपने जीवन में मैंने सीखी और Right? प्राप्त की। To appreciate people's gift, appreciate people's anointing, appreciate people's आप ministry. लोगों के वरदानों को मान्य करें, उनके प्रशंसा करें, उनके अभिषेक की प्रशंसा करें। Okay, and sometimes people start talking evil about some pastors and leaders. कई बार क्या होता है, दूसरे सेवकों के बारे में जो गलत किए उन पर दोष लगाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। We have to be very careful and not, spoil their reputation. और एक बात याद रखना, हम उनके कभी उनको दोष नहीं लगाना, कभी उनकी सम्मान को नहीं गिराना है। Okay, so we cannot change what has happened. और हम बदल नहीं सकते क्या हो रहा है। Sometimes we may feel angry when those people are continuing in their sin. अगर वो व्यक्ति लगातार गलत कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। But let's understand that they are answerable to God. लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें परमेश्वर के सामने जब न्याय होगा, उन्हें उसका उत्तर देना या हिसाब देना है। So we don't have to get into, like a smear campaign or talking wrong, evil things about them. हम उसका प्रचार प्रसार न करें कि वो क्या गलत कर रहे हैं और उन पे दोष लगाने का प्रयास न करें। So even though they are wrong, sometimes we wonder, why is God using them? और कई बार हम सोचते हैं वो गलत होने पर भी परमेश्वर उनको क्यों इस्तेमाल कर रहा है। The same reason why he's using us. एक इस कारण को जानना है, किस प्रकार परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। It is God's grace. वो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है, Because of his grace, he is still using them. और परमेश्वर के अनुग्रह होने के नाते, अनुग्रह उनके ऊपर होने के नाते अभी भी वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Because of God's grace, he's still using us. और प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण हम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Okay, and sometimes in the Christian world, like gossip, right? Gossip about pastors, leaders happens. और देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग क्या करते हैं, उन पर दोष लगाते रहते हैं और उनकी बुराई करते रहते हैं। So how do these personal stories come out? कैसे एक व्यक्तिगत कहानी जो हमारे जीवन की है वो बाहर आती है। See, mostly one pastor may have trusted another pastor and shared some personal information. मान लीजिए एक पासबान दूसरे पासबान के ऊपर भरोसा करता है और वो अपनी जो भी जीवन में घटना घटित हुई उसको बड़े अच्छे से ईमानदारी के साथ उससे बताता है, वार्तालाप करता है। But what happens is, if this other pastor goes and tells everyone, if the other pastor who heard it told everyone, और वो पासबान दूसरा पासबान उसकी बात को सुनकर सबके पास जाकर उसकी बुराई करता है, बताता है, that is called gossip. वो है उसका बुराई करना या उसको दोष लगाना। Okay, the information was meant to be confidential, or it was meant to be between both of them only. लेकिन ये जो बातचीत है हम दूसरों को ना बताएं, लेकिन आपस में एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। So see, they are our brothers in the ministry, sisters in the ministry. We have to keep their information personal. एक बात याद रखना, चाहे जो भाई या बहन प्रभु की सेवकाई में उनकी व्यक्तिगत जानकारी को हम सुरक्षित रखें, कभी वो बाहर ना करे, उन पे ना तो उनके बातों को कहकर दोष लगाए। Don't create division among the community, pastors and leaders. और एक बात याद रखना, पासवानों के बीच में, समाज के बीच में हम कभी भी फूट ना डालें। And when we are relating with other pastors, जब हम किसी पासवान के साथ रिश्ता बनाते हैं, it should be for genuine fellowship. और उसमें क्या है, हमें एक सहभागिता उनके साथ रखने के लिए हम प्रयास करना है। There is more about this in the book Kingdom Builders. और हम देखते हैं कि जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जब हम परमेश्वर की राज की स्थापना या बनाने में लगे हुए हैं। Okay, so what we are saying here is, when people from ministries come together, जब हम प्रभु की सेवकाई, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हम जब एक साथ आते हैं, people from ministries or ministers, pastors, they all join together. लेकिन जो सेवकाई करने वाले पासबान और अगुवे जब एक साथ मिलते हैं, sometimes it becomes a good networking exercise. कई बार क्या होता है, एक अच्छा जन संपर्क का कार्य
होता है। So, you come to know this pastor, you come to know this ministry, that ministry. तब हम जान पाते हैं कि हाँ वो पासबान की सेवकाई कैसी है, वो संस्था का काम कैसा है। हम एक दूसरे के द्वारा उन चीजों को हम जान पाते हैं। So, all you want to do is get to know people so that you can use them for your ministry. हम उन सारी बातों को जानना जरूरी है जो अलग अलग रीति से सेवकाई करते हैं, ताकि हम मिलकर उस सेवा को कर सके, समझ सके कि हमें सेवकाई में किन चीजों की जरूरत है, उनका हम मदद ले सके। So, coming together as pastors is not to use each other. जब हम एक साथ जब आते हैं, हम एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि We should have genuine relationships with other ministers लेकिन of God. हमें एक बात याद रखना है, उसके साथ साथ हम लोग के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए हम आगे बढ़ना है। To be good friends with those pastors. उन पासबानों के साथ एक अच्छे मित्र के रूप में, To be like brothers and sisters with those pastors. और उन पासबान के साथ एक भाई बहन का रिश्ता बनाने के लिए, Okay, so that you can journey in life together. ताकि हम अपने जीवन में उस यात्रा को पूरी कर सके। Okay, so I still remember there is one pastor, a lady pastor. और मैंने आपको एक बात याद दिलाई थी, एक महिला पासबान, She is a pastor in our city. और वो हमारे शहर में ही पासबानी करती है। And I really appreciate her attitude. और मैं उनकी जो रवैया को मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ। So I met her in one conference. मैं एक सम्मेलन में मेरी मुलाकात हुई, And she's very well known. और वो बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी। We exchanged our phone numbers. हमने एक दूसरे को अपना नंबर आदान प्रदान किया। Till today, she will wish me, happy birthday or happy new year, Merry Christmas. और अभी भी हमें हैप्पी बर्थडे, नया साल की मुबारकबाद हम एक दूसरे को करते रहते हैं, देते रहते हैं। Or whenever, she's free, I'm free, we'll catch up for coffee, find out, hey, how is life? What are you doing? जब Different कभी things. हमें अवसर मिलता है तो हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, पूछते हैं कि आपका कैसा चल रहा है, कैसा जीवन है आपका। इन चर्चाओं को हम करते रहते हैं। We don't talk only about ministry, we'll talk about health, exercise, vacations. हम सेवकाई पर ही ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी छुट्टियां, हमारे परिवार के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। It's a good friendship. और ये अच्छी मित्रता है। And this is something this is what I'm talking about. और मैं यही बातों को मैं आपसे बताना चाहती हूँ और बात कर रही हूँ। We need to have good, healthy relationships with people in the ministry. और सेवकाई के अंदर इस बात को याद रखना, हमें एक स्वस्थ रिश्ता या मित्रता बनाने की आवश्यकता है। There's no need of competition. उसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। God's call on each one of our lives is unique. और परमेश्वर ने मुझे और आप लोग को एक यूनिक रूप से बुलाया है। Okay, and remember that in the fellowship of ministers of God, there are no superheroes. और हम जब से एक साथ जब सेवकाई में पा जाते हैं, हम कोई विशेष हीरो नहीं है। Okay, we are all there to serve one another and to serve the और Lord. हमें प्रभु ने नियुक्त किया है एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की मदद करना सेवा में। So now let's talk about money. अब हम पैसों के बारे में बात करेंगे। So when we are serving the Lord, we should not love money. जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, एक बात याद रखना, पैसों से ज्यादा प्यार ना करें, रुपयों से ज्यादा प्यार ना करें। In 1 Timothy 6 verse 10 and 11, और पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 10 और 11 में हम पढ़ते हैं। it says, "For the love of money is a root of all kinds of evil." देखते हैं रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। So money is not the root of all evil. और जो पैसा सब बातों का जड़ तो नहीं है बुराई का, Love of money. लेकिन उस रुपयों से, पैसों से प्रेम करते हैं, वो बुराई का जड़ है। See, if somebody says, "I'm not at all bothered about money," that's foolishness. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसे की परवाह नहीं करता, वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। I'm serving the Lord, I don't think about money. मैं पैसे की परवाह नहीं करता, मैं सेवा कर रहा हूँ करके कहता है। God wants us to be careful in the use of our money. परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, परमेश्वर कहता हमसे। But the love of money, लेकिन रुपयों पैसे से अगर हम प्रेम करते हैं, that is the problem. वो है बड़ी समस्या। Okay, so
the love of money shows in a way that I'm always thinking about money. और पैसों से प्रेम करने का जो मतलब है, हमेशा मैं पैसों के रुपये पैसे के बारे में सोचता रहता So हूँ। if somebody asks us to come, okay, come and preach, come and do this, we हाँ। ask how much money are you हाँ, giving? कई बार लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको प्रचार के लिए बुलाते हैं तो पूछते हैं कितना रुपए मिलेगा। So what is happening? We are only thinking where I get money, there I'll serve. बस हमारी सोच क्या है, कहाँ से मुझे पैसा मिलेगा और मैं भी सेवा करूं। Okay, so we appreciate people who can give us money, और जो हम उन लोग की प्रशंसा करते हैं जो हमें रुपया पैसे देते हैं। who can give a big offering. हो सकता है बड़े आपको दान वो दें। So what happens is when we start loving money like this, it will corrupt our integrity. अगर इस प्रकार से आप रुपयों पैसे से आप प्रेम करते हैं, आप क्या हो गए, उस बुराई को पकड़ लिए या बुराई में फंस गए। See, sometimes ministry is for making money. Sorry to say this, but I have heard people say ministry means more money. कई लोग सेवा इसलिए करते हैं कि ज्यादा कमा सके सेवा के द्वारा, काम करने के द्वारा। ये बड़ा हो सकता है कई लोग को बुरा लगेगा और ये बहुत ही सोचना बोलना बड़ा मेरे लिए बड़ा धक्का का कारण है। Yeah. So I have heard people say that, okay, if I do ministry, I will earn more money. अगर मैं सेवा को करूं तो मुझे उसमें क्या कर बहुत पैसा कमा सकती हूँ। Ministry is not for money. और जो Ministry is not for money. सेवकाई केवल पैसों पर आधारित नहीं है। Okay, so sometimes what happens, people think, okay, if I do house visit, if I go for housewarming, this and that, I will get some money. कई लोग सोचते हैं मैं घर के उद्घाटन, नया घर बना उसका उद्घाटन करने जाऊंगा, मुझे वहां से पैसा मिलेगा। मैं किसी घर में जाकर लोगों से मिलने जाऊं, वहां से मुझे पैसा मिलेगा। ये सोच कई लोग बना के चलते हैं। Okay, so what's happening is we are obsessed with doing those things which will give us more money. हाँ, हम ये सोच को लेकर चलते हैं और हमारे मन में क्या आता है कि इसके द्वारा हम किसी के घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करते हैं, तो हमारे अंदर मन में क्या आता है कि इसके द्वारा मैं बहुत कमा सकता हूँ। Okay, sometimes we like to connect with overseas organizations. कई बार हम प्रयास करते हैं बाहर जो देशों में संस्था है उनसे संपर्क बनाने का हम बहुत प्रयास करते हैं। And we try to show like we are doing very good ministry. और हम इस प्रकार अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छी सेवकाई करता हूँ। See, if ministry is happening, fine. हाँ, अगर सेवकाई हो रही तो बहुत अच्छी बात है। But as we said, wrong reports. लेकिन गलत हम किसी को रिपोर्ट ना दे। And overseas people see the pictures, they say, oh, so poor. हाँ, जब people are so लोग poor. बाहर विदेश के लोग जब फोटो देखते हैं, अरे कितना गरीब लोग हैं। Yeah, people are in so much problem. Okay, we'll give some money. हाँ, ये लोग बहुत बड़ी समस्या, आंख बंद करके प्रार्थना तो बोला अंधे लोग हैं यहाँ पर, तो चलो हम पैसा देकर ऐसा आता है, ऐसे लोग बनाते रिपोर्ट। Okay, so see, basically we are manipulating. हम क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, हमें उनको बताकर उनको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। That is not correct. ये सही नहीं, व्यक्ति Okay, सही नहीं है। so is it wrong to receive money from people? क्या ये तरीका सही है कि गलत तरीके से पैसों को पाना? See, the Bible says that when we are serving the Lord, we will receive money from people. या एक बात ये याद रखना है, जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उन स्रोतों को हमारे लिए प्रदान करके देते हैं। So let me just read these scriptures because it's important. और ये हम वचन को पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Galatians 6:6. गलाती के पत्र 6 अध्याय 6 पद। Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। And 1 Corinthians 9 verses 11 and 14. पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 11 और 14 पद। If we have sown spiritual things for you, इसलिए जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, is it a great thing if we reap your material things? तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु को फसल काटे? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। See, so people will give and people should give according to the Bible. परमेश्वर के वचन के अनुसार
लोग सुसमाचार के लिए देंगे और जरूर प्रदान करते हैं, So what we are saying is don't be greedy. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? लालची नहीं बनना है। And we should not put pressure on the people to give हम money. लोगों के ऊपर उस अधिकार को जमाना नहीं है, उनको मजबूर नहीं करना है कि तुम देव हमें देना है। Okay, so obviously we will teach from the word about offerings, tithes, and let people give as the Lord leads them. हाँ, हमें परमेश्वर के वचन से सिखाना है, हमें भेंट के बारे में, दशवांश के बारे में, हमें इस वचन के द्वारा उनको समझाना बहुत जरूरी है। You know, and we said earlier regarding fundraising और मैंने इस प्रकार पैसों को फंड राइजिंग के बारे में मैंने आपको बताया that you know we show reports that are wrong and then we try to get money. कई बार हम अपने सूचनाओं को, हम अपने रिपोर्ट को गलत रीति से लोगों के सामने प्रकट करते हैं ताकि रुपये पैसे को पाए। See, the point is whatever we do should glorify God. लेकिन जो कुछ हम कार्य हमारे जीवन से होता है, इस बात को याद रखना, परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा को पाना है। So you know, if we are using excuses like okay, I'm living by faith, so give me money. अगर हम इस प्रकार का बहाना बनाए कि मैं विश्वास के द्वारा जी रहा हूं, Yeah, so it happens. You know, people don't want to work, don't want to work hard in the ministry, and they इसलिए- use that statement, I'm living इसलिए- by faith. इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते और बैठे रहते एक जगह। वो कौन सा वचन कोट करते हैं कि मैं विश्वास में बना रहूंगा या विश्वास के द्वारा मैं कार्य करूंगा। You know, and sometimes the request comes like, okay, we are doing this work, we need 20,000 rupees. Please pray. We are telling you, just pray हाँ। for this thing. कई लोग इस प्रकार लोगों के सामने प्रार्थना विनती रखते हैं कि मैं इस प्रकार की सेवकाई कर रहा हूं, मुझे 20,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, वो और कहते हैं कि इसके लिए प्रार्थना करें। लोग इस प्रकार कहकर मांगते हैं। Okay, so again, the point is just be honest, don't manipulate. हम क्या करना है? इसमें ईमानदार बनना है, ना कि हमें गलत काम को करना है। And one more thing, among you know, countries like India and all, we are so dependent on foreign support. और हम देखते हैं अपने भारत में बहुत से लोग विदेशी पैसे पर निर्भर होने का प्रयास करते हैं, निर्भर रहते हैं। There's nothing wrong if ये- believers want to give. There's nothing wrong. ये गलत बात नहीं है, कोई व्यक्ति बाहर का विदेशी विश्वासी भाई बहनों हमें अगर सहयोग कर रहा है तो। See, but in our nation, I think we are in a place where we can kind of grow to that extent of being self-supporting. और We can support our own ministries. हम क्या कर सकते हैं अपने देश में रहकर कि हम स्वयं खुद ही सेवा में बढ़ने के लिए हम खुद पैसों को हम उत्पन्न कर सकते या बना सकते, या बनाने का मतलब यह है कि हम काम के द्वारा उस कार्य को कर हम सेवा में सहयोग कर सकते हैं। See, here at All People's Church, when the church was founded, pastor decided not to take any foreign funding. और पासवान ने यहाँ पर इस बात का निर्णय लिया कि हम किसी भी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं होंगे। So we don't have that account, right, through which people can transfer money. We don't get any foreign money. और हमारे पास किसी प्रकार का विदेशी सहायता हमें नहीं मिलती, ना हमारे इस प्रकार का अकाउंट है। All our accounts are, you know, I don't know what you call it, but it's published on the website. और हम जो अकाउंट को वेबसाइट में हम पब्लिश करते हैं। So you can see the reports from, I think, 2001, from the time the church was started till today. और 2001 से लेकर अभी तक हम जब वो रिपोर्ट को देखते हैं, Okay, all the work that we are doing is, the money is coming from Indian people. और जितना भी रुपया पैसा सेवकाई के लिए आता है हमारे भारतीय लोगों के द्वारा ही, From the church people. और हमारे कलीसिया के लोगों के द्वारा। Yes, there are some, you know, people who will go abroad, but then when they come, they'll send money from their Indian accounts. हाँ, ये एक बात सही है कि हमारे कलीसिया से जो भी लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उन्हें जो पैसा मिलता है, फिर हमारे कलीसिया में आकर हमारे उस कलीसिया के अकाउंट में उन रुपयों पैसों को देते हैं सहयोग के लिए। So what we're trying to say is we don't have to depend on foreigners for funding the और way we used to in हम those years. जहाँ कहीं भी सेवकाई करते हैं, इस बात को याद करना, हम विदेशी सहायता पर निर्भर ना रहे। Sometimes we ask money for a project, and even after the project is completed, that advertisement will still be there.
और वहां पर हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, हम कुछ प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करते हैं और उनका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी फिर भी कोई प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार चलता रहता है। So what happens? People who are giving will continue to give because they think the need is still there. और सोच क्या है कि वो काम तो खत्म हो गया, लेकिन सोच ये आता है कि लोग बार बार लगातार उन काम के लिए पैसे देते रहे। Okay, so yeah, these are all some important things with regard to ministry and money. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारी सेवकाई में, सेवकाई के कार्य हेतु पैसे के बारे में सोचना। And especially when we are pastors and we plant a church, जब कभी हम पासवान होने के नाते जब कलीसिया की स्थापना जब करते हैं, one good thing to do is to have two separate bank accounts for personal money and church money. एक बात याद रखना, जब आप सेवा को कर रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत अकाउंट बैंक में अलग होना चाहिए, और जो सेवकाई है, जिस नाम से सेवकाई आप कर रहे हैं उसका अकाउंट अलग होना चाहिए। So even the government, I think, asks for that, right? Trust account. और सरकार भी ट्रस्ट, जो भी ट्रस्ट और संस्था बनाते हैं उसके अकाउंट की जांच पड़ताल करता है। So when personal and ministry is separate, जब आपका व्यक्तिगत और सेवकाई जब अलग होती है, there'll be no confusion. उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। Okay, otherwise, even by mistake, we may use the church money for personal things. और कई बार क्या होता है, गलत इस्तेमाल करते पैसे, कलीसिया का, चर्च का पैसा जो आता है हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं। Okay, so we have to be so careful about how we steward money. तो हमें बहुत सावधानी बरतना है कि पैसे को किस प्रकार इस्तेमाल करने के लिए। We can give money to other ministries. हम दूसरों की सेवकाई में दूसरों की सेवकाई में हम सहयोग प्रदान करें। So, we are used to receiving, but we can also give to other churches and ministries. एक बात याद रखना, हम लोगों से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है हम दूसरों की कलीसिया ये सेवा के लिए देने का प्रयास करें। Okay, we have two more chapters that I'm going to touch very quickly, and then we'll switch to this book, Receiving और God's Guidance. अभी दो अध्याय और बाकी है, मैं जल्दी से उस अध्याय को छूती हुई निकल जाऊंगी आपको बताते हुए। Okay, so the next is regarding the area of temptation. और ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे जीवन में परीक्षा और अभिलाषाएं आती है। Here, because Pastor has written, he's written about women. और ये यहाँ पर जिस अध्याय यहाँ पर लिखा गया है वो स्त्रियों के बारे में। So I know for us women, we can kind of apply it in the way that is useful for us. और अगर आप इस जो बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम अगर इन बातों को अगर अपने जीवन में लागू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। Okay, so just try to use it in our context. और हम अपने सोच से, अपने क्षेत्रीय या सामाजिक क्षेत्र के अनुसार उन बातों को समझे। Okay, so remember we said that even if we become a pastor or we are very anointed, we are not immune to temptations. और हम देखते हैं कि हम पासवान होने के नाते, अभिषिक्त होने का नाते हमारे जीवन में परीक्षाएं, अभिलाषाएं आती हैं। So there could be a sense of attraction to the opposite sex. और वो होता है हम एक दूसरे के क्या बोलना चाहिए, जो लिंग के द्वारा, यानी स्त्री पुरुष के द्वारा देखकर एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। Okay, but the point is that we have to be careful in our minds. लेकिन एक बात याद रखना, हम अपने मनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। So even if you look at the story of Samson and Delilah, और हम जब सिमसोन और दलीला के कहानी को हम देखते हैं, we see how he lost his strength. और हम देखते हैं किस प्रकार वो सिमसोन ने अपने उस सामर्थ को खो दिया, Because lust consumed him. क्योंकि उसको क्या किया, अभिलाषा ने उसको आकर्षित किया। There were many opportunities for Samson to kind of not go in that direction. और कई बार उसको निर्देश मिला कि उस रास्ते पे ना जाने के लिए, But he continued. लेकिन उसने लगातार उस काम को किया। And one fine day, एक दिन he lost his strength. उसने अपनी सामर्थ को खो दिया। Even for us, हमारे अंदर भी we don't fall into temptation suddenly. कई बार हम परीक्षाओं में या अभिलाषाओं में अचानक नहीं गिर जाते। It all starts with some thoughts which we think, it's okay, I can think, no problem. हाँ, वो हमारे अंदर एक छोटी से सोच विचार से प्रारंभ होता है। हाँ ठीक है, ये कोई बात नहीं है। No, even the enemy may put a wrong attraction in our mind. कई बार हमारे मन में शैतान
गलत लालसाओं को हमारे अंदर डाल देता है। Our responsibility is to tear that thought down, take it और captive. क्या करना है, ऐसे सोच विचार लालसा उत्पन्न अगर हो रही है तुरंत उसको हमें गिरा देना है। But when we keep it in the mind जब अगर अपने मन में बरकरार या बनाए रखते हैं, and we continue, वो लगातार फिर बढ़ते जाता है slowly the downfall will come. और धीरे धीरे वो गिरावट का कारण बनती है। So today the problem is not that people are not anointed. और इसका मतलब ये नहीं कि लोग इन दिनों में अभिषेक को पाए हुए लोग हैं, It's not that people are not doing good ministry, और इसका मतलब ये नहीं कि लोग बहुत अच्छी सेवकाई को जो कर रहे हैं, but there are casualties where mighty men of God, women of God have fallen. देखते हैं बड़े प्रभावशाली प्रभु के दास लोग, अभिषेक लोग ऐसे पाप में गिर चुके हैं। Okay, how did that happen? ये कैसे होता है? Not overnight, not suddenly, केवल एक रात नहीं, एक दिन नहीं और अचानक नहीं, slowly. धीरे धीरे। These things happen little by little and they grow. और ये धीरे धीरे हमारे अंदर आता है, बढ़ता है और वो बढ़ते चला जाता है। And we must be so careful with our eyes. हम अपने आंखों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। The Bible says that if you look at a woman with lust, you have committed adultery. अगर किसी स्त्री को आपने गलत दृष्टि, कुदृष्टि से देखा है, तो इसका मतलब आपने व्यभिचार कर चुके हैं। Okay, so the standards that Jesus brought are much more stricter. हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो एक स्टैंडर्ड को, एक प्राथमिकता को हमारे जीवन में जो लेके आया है, बड़े कठोर नियम के निर्देश के अनुसार। Okay, but how can we do this without the grace of God? हम बिना अनुग्रह के द्वारा हम क्या इसको कर सकते हैं? Okay, so we must be so careful the attitude with which we are relating to the opposite sex. और हमें बड़ी सावधानी बरतना है एक दूसरे के आकर्षण के लिए। If wrong thoughts come to our minds, जब हमारे मन में गलत सोच आते हैं, we can use scriptures like what is given in the notes. और जब नोट्स में हमें जो वचन दिए उन वचनों का हमें इस्तेमाल करना है। Job 31 verse 1, it says, Job 31 verse 1, ये अय्यूब 31 उसका 1 में बताया गया है, I have made a covenant with my eyes. मैंने अपनी आंखों के विषय में एक वाचा बांधी है। Why then should I look upon a young woman? कि मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। Psalm 101 verse 3, भजन संहिता उसका 101:3 में बताया गया है, I will set nothing wicked before my eyes. मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊं। Okay, so there are many scriptures, and the way Jesus fought Satan during his temptation, we can speak the word. हम बहुत से वचन को देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना किया और परीक्षा पर विजय को पाया। Okay, so this is applicable to both men and women. और ये पुरुष और स्त्री के लिए लागू करने वाली बात है। So here, like the Bible says, that younger women should be treated as sisters with all purity. एक बात याद रखना कि जवान स्त्रियों के साथ पूर्ण पवित्रता से बहनों के समान व्यवहार करना जरूरी है। So we have to maintain the boundaries. हमें अपने सीमाओं की रक्षा करना है, सुरक्षित रखना है। So the same thing is applicable to the women. ये स्त्रियों के लिए भी लागू की जाती है। So you treat men as your brothers. और एक जवान पुरुष को क्या करना है, अपने भाई के जैसा व्यवहार करना है। Okay, and always maintain a distance between you and the opposite sex. अभी एक बात याद रखना, स्त्री और पुरुष के बीच में जब हम रिश्ता बनाते हैं, हमें दूरियों को कायम रखना है। Okay, there cannot be a mentoring relationship between a lady and a man. और हम कई बार एक मेंटर करने वाला, हमें मार्गदर्शन करने वाला एक स्त्री पुरुष आपस में नहीं होना चाहिए। So we always say women mentor women, men mentor men. और एक बात याद रखना, किसी को अगर पुरुष को सलाह चाहिए तो पुरुष वो क्या करे, उस दूसरे पुरुष के द्वारा उस सहायता को प्राप्त करे। इसी प्रकार स्त्रियों भी अगर किसी के द्वारा आपको मार्गदर्शक या जानकारी चाहिए तो आप किसी अच्छे स्त्री के पास जाकर उन जानकारी को प्रदान करें। So see, guidance we can get from anybody. Mentoring means like repeated meetings and journeying together. और मार्गदर्शन तो हम किसी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक करीबी रिश्ता बनाकर उनको हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन सीखने के लिए ये हमें दूरियां बनाना बहुत जरूरी है। So when when people share their
things that are close to their heart, sometimes there is a bonding between the people. अब देखते हैं जब लोग जब करीबी रिश्ता बनाना चाहते हैं तो वहां पर कुछ हम देखते हैं एक बाधाओं को हम देखते हैं या रुकावट को देखने पाते हैं। So in a mentoring relationship, we don't want to develop affection, right? और जब हम मेंटरिंग करते हैं तो हम व्यक्ति का जो रिश्ता है जो आकर्षण है वो कई बार हम डेवलप हो जाता है। So what we can do, like even in my situation, if there are guys who need more counsel, I'll send them to some of our male pastors. तो हमें कई बार अगर ज्यादा जानकारी चाहिए और ज्यादा सलाह की हमें आवश्यकता है तो हमें अपने पासवान के पास जाना बहुत अति आवश्यक है। Okay, and to kind of lead men and women in our ministry in the right way, और हमें एक पुरुष और स्त्री होने के नाते हमें सही मार्गदर्शन की या सुरक्षा की आवश्यकता है। there are, certain things that we can't instruct them on. और कई बार ऐसा होता है कि बड़ा हमें सावधानी बरतना है उन चीजों में मार्गदर्शन करने के लिए। See, for example, if they are married. और उदाहरण के लिए आप विवाहित है, So as a pastor, there's only I have only that much authority on that person. और पासवान होने के नाते मेरे पास उतना ही अधिकार है जो अधिकार मैंने पाया है। But then there is the marriage relationship and the authority of the husband on a woman or the woman on the husband. जिस प्रकार एक वैवाहिक जीवन में एक पुरुष का अधिकार उसके पति और पत्नी के जीवन में जब हम देखते हैं आपस में, So we should not try to take that authority and use it because we are a leader. एक अगुवे होने के नाते उस पति पत्नी का जो अधिकार है वो हम स्वयं पासवान की जिम्मेदारी है ना उसको ले। And especially when there are when people are struggling with some weakness. और कोई व्यक्ति जब कमजोरी में होकर जब जाता है, For example, in somebody's marriage relationship, things are not going very well. हो सकता है उनका वैवाहिक जीवन अच्छे रीति से नहीं हो रहा, पर दोनों का रिश्ता सही नहीं स्थापित हो रहा है। And if a lady tries to counsel that husband, अगर मान लीजिए वो स्त्री उस पुरुष का सलाह विमर्श परामर्श कर रही है तो it's very problematic कई बार बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। because there is a weakness that man is experiencing, and this could turn into a wrong relationship. कई बार क्या होता है उसकी कमजोरी उसका पतन का कारण बन जाती है। Okay, so when you find weaknesses in the opposite sex, you ask other men pastors to mentor, and similarly women pastors to जब mentor. एक दूसरे में जब कमजोरियां होती है तो प्रयास करे कि वो जो अनुभवी पासवान है उसके पास जाकर सलाह ले, आपस में एक दूसरे व्यक्ति से सलाह लेकर गिरने का प्रयास न करे। So have some self management rules. और कोई हम देखते हैं कि व्यक्तिगत हमें प्रबंध करने के लिए एक योजना को तैयार करना है। Like you won't travel alone with a man. और that you don't know. स्त्रियों का कर्तव्य है कि अकेले किसी पुरुष के साथ यात्रा न करें। Similarly, even the men, you could just, whatever, to protect yourself, you just come up with some of those strategies. और जैसे पुरुष भी इस प्रकार अकेले यात्रा नहीं करें, लेकिन कुछ योजनाओं को हम बनाएं ताकि हम अपनी रक्षा कर सके। Things like, okay, after certain time, even if it's a ministry thing, I won't pick the call. और कई बार सेवकाई में ये होता है, कई बार मैं फोन को नहीं उठाती हूँ। So, I mean, many of the volunteers, right? Men volunteers or men colleagues, if they message, I'll only respond in the morning. कई बार क्या होता है कि जो वॉलंटियर है हमारे भाई बहन लोग हमसे संपर्क करते हैं तो केवल मैं सुबह के समय मैसेज को पढ़ती हूँ। So that's a boundary. वहां पर एक सीमा है मेरी। So you can have your own personal strategies to protect yourself. आपके व्यक्तिगत जीवन में आप एक कार्य को तैयार कर रहे, योजना को बना रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षा दे सके। Guard your affections. आपके उस जो आकर्षण को सुरक्षित करें। Guard your affections for the right relationship. और सही रिश्ता बनाने के लिए आप अपनी सुरक्षा करें। And always, when we are very happy or very sad, we are vulnerable. Vulnerable, meaning those are the times that we can fall. कई बार क्या होता है हम बहुत अति खुशी होते हैं, कई बार निराश होते हैं, ऐसा समय हो जाता है कि हम उसमें गिर जाते हैं। So in those moments, we are not careful. वो ऐसे समय जो होता है हम सावधानी बरतते नहीं है। When we are having a great victory or when we are facing a lot of sadness. कई बार क्या होता है बड़ी विजय को हम हासिल कर लेते हैं
या कभी हमारे जीवन में जब निराशा आ जाती है, So at that time, if some person comes and they compliment you or they speak nice things to you, you feel like, oh yeah, maybe they Yes. like me. ऐसी विपत्ति के, ऐसे विजय के समय कोई ऐसा व्यक्ति आकर हमें कंफर्ट करता है, बड़े अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है। Okay, so these are all the dangers, और कई बार ये सारी बातें खतरा हमारे लिए बन जाती है। and we must be so careful. इसके लिए हमें क्या करना है? सुरक्षा देना है। The last chapter is about fame. Fame. आखिरी जो अध्याय उस पर हम देखने पाएंगे प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा के ऊपर। So I'll just say one thing and close. और मैं एक बात बताकर यहाँ पर मैं समाप्त करूंगी। We should not promote ourselves. हम अपने आप को इतना ना बढ़ाए। Do God's work sincerely, God will promote you. हम विश्वास योग्यता ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, ना कि हम अपने आप में प्रयास करें आगे बढ़ने के लिए। Okay, amen. Book Amen. is done. Right. So we'll do the next book, maybe 1 or 2 chapters, and with that the course will be और over. अगले हम पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। Yeah. Thank you. धन्यवाद।